लेकिन अब safety of building and machine, because the inspectors are tested with the inspectors are tested with power to inspect any factory building, from a machinery or plant. He must investigate and study. He must investigate and study the various safety aspects. And for original purpose. और नहीं है सांगे various safety aspects of building water graduate and study the various safety aspects of building from a plant and machinery. They should ensure that these are maintained. Properly. They should maintain properly and in a safe working condition. If it appears to the inspector that these are in such a condition which might be dangerous. These are in such a condition which might be dangerous to the health, and welfare of the workers, comma, he may write to the occupier of the factory
the occupier of the factory in specified manner. He may write to the occupier of the factory in specified manner and the measures to be adopted in such cases, the measure to be adopted in such cases and requiring its compliance requiring its compliance before a specified date. Before a specified date. The safety of building and machinery. जो प्लांट में एक मशीनरी जो भी मशीनरी यूज होता है और उसकी जो बिल्डिंग होता है उसके सेफ्टी प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री जो है वो उसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। जहाँ पे भी कुछ उनको इस तरह का कुछ लग रहा है कि कुछ चीज ठीक नहीं है तो उसको वो क्या करेंगे, लिखेंगे एक रिपोर्ट जिसको मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद उसको करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है उसी मशीन को और उसी बिल्डिंग को कैसे बिल्डिंग के लिए कैसे करेक्टिव एक्शन लेना है उसको भी वो कुछ आइडिया दे सकते हैं और उसकी एक एक्सपेक्टेड डेट बोलेंगे कि ये डेट है, इस डेट के अंदर ये सभी चीज ठीक करना है, ठीक है। इसी तरह से एक एक्सपेक्टेड डेट लेंगे और उसी डेट के अंदर सभी को ठीक करना है, समझ रहे हैं। এটা দেখতে আমরা ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরি দিয়ে এই আসলে আমরা কোম্পানি ভিজিট করব বিশেষ করে কিন্তু এটা দেখি ये মানে দেখতে যদি কিছু জিনিস এমনি আসলে আমাদের কন্ডিশন আছে তো সে ଗୋଟେ রিটিন ডকুমেন্ট ଗୋଟେ অর্ডার লিখবে কাহাକୁ ডাইরেক্টর অফ ফ্যাক্টরি और मैनेजर की जेल जेल के लिए এটা কোন বিল্ডিং সেন্ট্রাল লোকাল বিল্ডিং না কোম্পানি প্ল্যান্ট বিল্ডিং সেটা তারপরে সে ଗୋଟେ এক্সপেক্টেড ডেট নেবে যে এই ডেট ভিতরে আমরা সবগুলো জিনিস কমপ্লিট হওয়া দরকার। কমপ্লিট যদি না হবে সে জিনিস আসতে নেই পারে, ঠিক আছে। তারপরে এখন সেকশন 40 বি 40 ব্র্যাকেট ভিতরে বি সেকশন 40 বি सेक्शन 40 बी तो आज हमारा सेफ्टी ऑफिसर हमारे सेफ्टी लोग का इंटरेस्ट है सेफ्टी ऑफिसर कितने बात का काम करते हैं और यदि डेंजरस वर्क से हुआ है वो चीज आज हम लोग 1000 वर्कर नॉ हले भी हमें सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ हम 1000 because the state government may require the occupier or owner require हमने details of safety officer बताया ना the state government may require the occupier or owner of a factory wherein 1000 or more workers are ordinarily employed wherein 1000 or more workers are ordinarily employed are ordinarily
ordinary employed, or where in the opinion of the state government, any manufacturing process is carried on, any manufacturing process is being carried on, any manufacturing process is being carried on, which involves any risk, or body injury, poisoning, or diseases, or any other hazard, poisoning or diseases, or any other hazard to the health of the, persons employed in the factory, comma देखो, to employ such numbers of safety officers as specified in the rule. The duties, qualification, and conditions of safety, conditions of service. The duties, qualification, and conditions of service of safety officers are to be prescribed by the state government. The state government may require the occupier or owner of the factory wherein 1000 or more workers are ordinarily employed. अगर एक ordinary company है, 166,167. तो अगर एक कंपनी है और वहाँ पे ऑर्डिनरी प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पे 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे और ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक सेफ्टी ऑफिसर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, और where in the opinion of the state government any
manufacturing process is carried on which involves any risk or body injury, poisoning or diseases or any other hazard to the health of the persons employed. अगर एक ऑर्डिनरी कंपनी है तो 1000 में एक सेफ्टी ऑफिसर रखेंगे, नहीं तो अगर एक डेंजरस कंपनी है और जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है जो कि लाइफ रिस्क है और वहाँ पे रिस्क ज्यादा है, पॉइजनिंग हो सकता है और ज्यादा क्या हो सकता है, डिजीजेस भी ज्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे जोड़ा प्रोसेसिंग जोड़ा करा कंपनी रो प्रोसेसिंग करा सपोज हमरो ଗୋଟେ कंपनी चार्ज को जेनरेट करछि माने प्रोडक्शन होछि तो तारा सेटा होछि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमर जो फैक्ट्री अछि फैक्ट्री रे तारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे माने तार जो प्रोसेस गुडा अप्लाई करै छै गोटे फैक्ट्री रे क्लियर करछि सेटा होछि मैन्युफैक्चरिंग तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेंजरस होता है और जिसमें डिजीजेस होने के चांसेस है और रिस्क ज्यादा है वहां पे हम सेफ्टी ऑफिसर 1000 वर्कर नहीं काम कर रहे हैं तो भी हमें सेफ्टी ऑफिसर रखना चाहिए, ठीक है। तो the duties, qualification and condition of service of safety officers are to be prescribed by the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे कि कौन सी आदमी एक सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो उससे ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर सेटा लिख दीजिए रूल 61A रूल 61A लिखो सेटा भी ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रूल 61A जल्दी बाबा सेक्शन आउथले तो रूल हैला रूल 61A ब्रैकेट में ए लिखो कैपिटल रूल 61A duties of safety officers first point पे देखो to advise the concerned department to advise the concerned department in planning to advise the concerned department in planning department देखो केवल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट in planning and organizing measures measures necessary for the effective control of personal injuries. तो पहला ड्यूटी क्या है? To advise the concerned department in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries. एक इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और ज्यादा डिजीज आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों को डिजीज होगा और वो एक्सीडेंट हो रहा है मतलब वो लोग इंजर्ड होंगे तो उसकी इंजरी को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? उसके लिए जो डिपार्टमेंट जो भी है उसको वो कुछ सजेशन देंगे, ठीक है। सपोज हमारा क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और सीएससी डिपार्टमेंट है और कुछ भी डिपार्टमेंट है उसको वो क्या करेंगे? सजेशन देंगे, ठीक है, और एडवाइस करेंगे। सेकंड पॉइंट to advise on safety aspects in all job studies and to carry out in all job studies and to carry out detailed job safety studies of selected jobs.
Study. Study of selected jobs. Study of selected jobs. तो कुछ सिलेक्टेड जॉब जो कि रिस्की है और हैजर्डस है उसके ऊपर वो कुछ सजेशन दे सकते हैं और कुछ एडवाइस दे सकते हैं सेफ्टी एस्पेक्ट को लेके। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और एक मशीन है और कुछ भी एक ऑपरेशन है, उसको कैसे हम सेफली ऑपरेट करेंगे विदाउट एनी एक्सीडेंट विदाउट एनी हैजर्ड, वो उसके ऊपर वो कुछ हमें एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिखो टू चेक एंड इवैल्यूएट, टू चेक एंड इवैल्यूएट the effectiveness of the to check and evaluate the effectiveness of the action taken, to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries. To prevent personal injuries. Suppose एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर एक सजेशन दिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसका इफेक्टिवनेस क्या होता है, मतलब वो हमारे लिए यूजफुल होता है या नहीं होता है, उसकी वजह से हमारा जो एक्सीडेंट हो रहा था वो एलिमिनेट हो रहा है और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उसका भी इफेक्टिवनेस है उसको भी चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसको छोड़ के भी चले जाएंगे। ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस भी चेक करना है। फोर्थ पॉइंट लिखो टू एडवाइज the purchasing and stores department, to advise the purchasing and stores department purchasing and stores department in ensuring high quality and availability of personal protective equipment. High quality and availability of personal protective equipment. तो हमारा जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है जो कि सभी रॉ मटेरियल सभी चीज को खरीद के लाते हैं कंपनी को, तो वो डिपार्टमेंट जो है उसको और जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसको वो कुछ एडवाइस देंगे कि कैसे हमारा जो पीपीएस होता है वो गुड क्वालिटी का और सफिशिएंट नंबर का डेटा अवेलेबल रहेगा स्टोर में। ठीक है, उसको भी एडवाइस करें। तीसरे इनको टू प्रोवाइड advice on matters related to carrying out plant safety inspection. तो प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होता है, जो इंस्पेक्शन होता है प्लांट में, उसको हम कैसे करेंगे उसके लिए भी वो कुछ एडवाइस करेंगे। कौन करेगा प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन? सेफ्टी डिपार्टमेंट की कुछ लोग भी कर सकते हैं और हमारा जो इंचार्ज पर्सन है, एक एरिया का जो इंचार्ज पर्सन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्या चीज चेक करना है उनको भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद को to carry out plant safety inspection. Next point. To carry out plant safety inspection in order to observe the physical condition
conditions of work. The physical conditions of work and the work practices. Physical conditions of work and the work practices and procedures followed by the workers and to render advice and to render advice on measures and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by the worker. तो प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन जो प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है उसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे. जो एक काम होता है जो कि और कुछ कंडीशंस होता है जो कि अनसेफ कंडीशन में है. कहाँ पे मशीन का गाड़ी नहीं है, कहाँ पे कुछ एक फ्लोरिंग का वो कंडीशन ठीक नहीं है, कहाँ पे फेंसिंग चाहिए, कहाँ पे बैरिकेड चाहिए और क्या भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करेंगे. उसके साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग क्या माल फंक्शन कर रहे हैं और कुछ रॉन्ग ऑपरेशन कर रहे हैं उसको भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो ये सभी चीज को फाइंड आउट करने के बाद वो क्या करेंगे कुछ सजेशन देंगे कैसे लोग ठीक से काम करेंगे, क्या क्या चीज इम्प्लीमेंटेशन होना है, ये सभी के ऊपर भी वो क्या करेंगे कुछ सजेशन देंगे. और बेसिक पॉइंट है हमारा फाइंड आउट करेंगे कि अनसेफ एक्शन एंड अनसेफ कंडीशन क्या क्या है और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे. ठीक है. उसके बाद देखो सेकंड to render advice एक दिन थोड़ा मॉर्निंग लगेगा समय लोग भी इनको इंटरव्यू लगाने को मुझे भी ड्यूटी का सिचुएशन को अब को बोल लेते हैं लिखा है किसी को भी नहीं कर सकते हो पूरा भी मार कौन सेक्शन अंदर है सेक्शन होची 40B हमारा सेफ्टी ऑफिसर ଅଛି ता अंदर 61A होची होते माने कोन रूल है ना सही सेक्शन में रूल है 61A ସେଇଟା रे माने रूल ର ना भी ड्यूटी जो सेफ्टी ऑफिसर में ता ना भी सेफ्टी ऑफिसर है से रूल ना भी सेफ्टी ऑफिसर किंतु ସେଇଥିରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ. ସେଇଥିରେ ଆମର कोन क्वालिफिकेशन कोन केते एक्सपीरियंस थिले तार को पोजीशन मिलिबो आ तार ड्यूटी कोन पूरा सब पड़े अछि ए रूल तारे कोन लिखो टू रेंडर एडवाइस ऑन मैटर्स related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases. Investigation of industrial accidents and diseases. तो क्या क्या एक्सीडेंट होता है, क्या क्या डिसीजेस होता है, उसको क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको जिसको रिपोर्टिंग करना है रिपोर्टिंग भी करेंगे. हमारा एक्सीडेंट दो टाइप का होता है, एक रिपोर्टेबल और एक नॉन रेंडर to render advice on matters related माने related है ना. तो हमारा जो एक्सीडेंट होता है वो दो टाइप का होता है. कौन
रिपोर्टिंग एंड नॉन रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग एक्सीडेंट जो होता है उसको हमें क्या करना है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास भेजना चाहिए उसका जो रिपोर्टिंग। और नॉन रिपोर्टिंग एक्सीडेंट जो है वो हमारा मैंने क्या है वो कंपनी के अंदर सॉल्व हो सकता है, उसको ओनली जो चेयरपर्सन है हमारा जीएम और एमडी जो होते हैं कंपनी का उसको भेजना चाहिए, ठीक है। Third formula is to render advice and factors related to reporting and investigation of industrial accident and diseases। जो industrial accident और diseases होता है उसको वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक रिपोर्ट जो कंसर्न पीपल है उसको भेजेंगे, ठीक है। କେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରିଟର୍ନ ନ କରୁଛି କାମକୁ ସେଇଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ। ସେଇଟା ହେଲେ ତମର ମାନେ ବିଏମ୍ କୁ ତ ମାନେ ତମ କମ୍ପାନୀର ହେଡ୍ ଯେ ତାକୁ ତ ପଠେଇବ ତମର ରିପୋର୍ଟ, ତା ସହିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ବି ପଠେଇବା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ନର୍ମାଲି ଟିକେ ହେଇଥିବ ମାନେ କଣ 48 ଆୱାର ଭିତରେ ବି ସେ ଆସିକି ମାନେ କଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ କାମରେ, ସେତେବେଳେ ତମର ସେଇଟା ନନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ 8 no to investigate selected accident, to investigate selected accident। जो एक्सीडेंट होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट वो करेंगे। नेक्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द to investigate the cases of dangerous occurrence and industrial diseases, contracted reportable body का वेरिएबल है कि कौन सा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है diseases contracted reportable under rule 97, contracted reportable under rule 97 and 98, under rule 97 and 98। तो हमारा जो रूल 97 और 98 है वो क्या है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और रिपोर्टेबल डिजीजेस क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 97 और 98 अगर एक डिजीज और एक एक्सीडेंट डेंजरस है और एक काम डेंजरस ऑकरेंस होता है तो उसको भी क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे उसके ऊपर कुछ चीज को देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो टू एडवाइस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, टू एडवाइस ऑन द maintenance of source record, to advise on the maintenance of source record as necessary relating to accident, dangerous occurrences and industrial diseases। तो जो डिफरेंट टाइप का रेकॉर्ड होता है जो कि फ्यूचर के लिए काम में आएगा उसको भी मेंटेन करना है प्रॉपर्ली, जो कि डेंजरस ऑकरेंस होता है और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है और क्या क्या चीज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए, ये सभी का जो रेकॉर्ड है उसको भी प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। उसके बाद देखो टू प्रमोट सेटिंग ऑफ safety committees and act as to promote setting
members of safety committees and act as advisors to such committees and act as advisors to such committees. तो सेफ्टी कमिटी जो होता है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। सेफ्टी कमिटी होता क्लियर करेंगे। तो सेफ्टी कमिटी में मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सेफ्टी कमिटी का जो कुछ ऑफिसर है ऑफिसर कितना टाइप का सेफ्टी कमिटी है? टू टाइप का है। ज्यादा तो है, ज्यादा टाइप का है, लेकिन हमारा वो सिलेबस में क्या था? दो टाइप का। एक का जो इसमें लेबर वगैरह सारे रहेंगे। क्या है वो? कौन? मम्मी। तो ऐसा था ना कि सारा तैयारी हो गया था जो सारे ऑफिसर बैठते हैं। ऑपरेशन सेफ्टी कमिटी होता है। अरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी कमिटी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में हमारा ऑफिशियल जो लोग होते हैं बोर्ड मेंबर्स रहेंगे और ऑपरेशन सेफ्टी कमिटी में जो ऑपरेशन में जो भी कोलैबोरेटर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो लोग में उनमें से कुछ लोग मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद और भी ज्यादा सेफ्टी कमिटी है जो कि कंपनी में अप्लाई हो सकता है। तो ये जो सेफ्टी कमिटी है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, तैयार करेंगे वो सेफ्टी ऑफिसर, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका एडवाइजर भी वो सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे। क्या क्या करना है, कौन सी रिस्पांसिबिलिटी किसको देना है, कौन क्या क्या जगह को उसकी कंट्रोल में रखेगा, ये सभी चीज को सेफ्टी ऑफिसर को करना है। ठीक है, उसके बाद देखो टू ऑर्गेनाइज in association with the concerned department, to organize, in association with the concerned department, campaign, department, campaign, CAMPAIGNS, campaign, competition, contest, and other activities which will develop and maintain the interest of the workers, develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures. Safe conditions of work and procedures. Conditions of work and procedures. तो जो वर्कर्स है जो कि काम कर रहे हैं कंपनी में, वो लोग अगर नहीं, वो लोग पहले सेफ्टी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे।